everyone, good evening. क्या हाल चाल है सबके? I hope everyone is safe, doing good. I Yash Tukar, founder of Crest Research and Educare. I welcome you all to today's webinar. मैं आशा कर रहा हूँ सब अच्छे होंगे. I hope everyone is safe in these tough times. So is my voice audible to everyone? Just a quick yes on the chat box so that I can go ahead. अगर मेरी आवाज आ रही तो just a quick yes on the chat box. Okay, perfect, great. I'm getting a lot of yeses. Perfect. So once again, welcome you all to once again another great webinar. Thank you everyone who has joined on another Sunday night. And today also we have a great speaker with us who will be doing a great talk on Technofunda investing. But as we start every webinar, I'll try to give you a life lesson which if you agree with, you can write I pledge on the chat box when I say that, okay? So today's life learning is your potential is much bigger than what you expect. Your potential is much bigger than what you expect. Please try to achieve 100% of it. Don't compete or compare yourself with others. Compete and compare yourself with you. So it's the main motto behind sharing this life lesson is we always try to compare ourselves with others that मैं उनसे इतना खराब हूँ, मैं उससे इतना अच्छा हूँ, etc. etc. But in actual life, your potential is unlimited. You can achieve all the great heights. But again, you should compete yourself from what you were yesterday. अगर मैं कल 10% था और आज मैं 12% हूँ, so it's I'm very good. I'm going on a great scale. I'm going on a good life ahead, right? Other than comparing कि मेरा friend 15% पे है 20% पे, right? So we always try to compare ourselves with others. And let me tell you, everyone is special and everyone has some special qualities. So don't try and compare yourself with others. Always try to improve on yourself so that you try to achieve your goals. Always try to do hard work, and definitely I think success will reach your home. So always as I'm telling that if this is a very great mantra which I follow, that compete with yourself. So if you agree with this, write I pledge on the chat box so that from tomorrow you don't compete yourself or compare yourself with others. And in fact, it's for everyone, right? So great. I'm getting a lot of I pledges definitely on the chat box. Thank you so much. So now without wasting much more time, I would like to introduce today's speaker to you, who is a 19-year-old guy, Mr. Mohit Jangi. Welcome, Mohit. It's a pleasure to have you on the session of Market Kya Lagta Hai. I'll just give you the access to speak. Yes, Mohit, now you can go ahead and speak. Hi, Yashji. Am I audible? Yeah, you're audible. Your video is not there. Okay. Yeah, now we can all see you. So a warm welcome to you, Mohit. Of course, I would like to introduce Mohit. He has been doing some great work in the investing as well as trading field. He's just 19 years old, but he has more than 10 years of experience in the markets. He has been doing some great research on technicals as well as fundamentals, and he has been educating people not only on Twitter but in the real life. And I'm really amazed that at such a young age he has been sharing such great wisdom, such great knowledge. And it's my pleasure to have you, Mohit, on our show Market Kya Lagta Hai. A warm welcome. Thanks for inviting me, Yashji. It is an honor to present my skills to everyone, and I hope they will learn a lot from this webinar. So let's hope for the best that most of you will gain some interesting knowledge from this webinar. Great. So Mohit, it's very interesting. As I told that a lot of people even before the webinar asked me, that's a 19-year-old guy doing in stock markets. क्या कर रहा है? 19-year-old में तो we were in college and हम लोग stock market में बस सुनते थे. And he's been doing such great work. So tell us your journey. How did you start with the stock market journey? कैसे आपने start किया? क्यों आपने stock market को as a career choose किया? And how has been the journey till now? Because a lot of young people who are there, who are watching us every day, will get a lot of inspiration from you. And in fact, I'm very proud to say that Warren Buffett started at the age of 11, and I think you also started at the same age. So it's a great beginning.
Right. So I started when I was 11 years old. Uh, so that was not the beginning actually. I started learning basics from my father. So he is investing, or I'll say working in share markets from last 25 to 30 years. So I have gained a lot of experience from him as well. So the journey started from when I was 11 years old. Actually, my father used to research about a lot of companies because he was a trader at the beginning, but he shifted to value investing after he knew that this is the right way to create huge wealth in longer term. So basically, the journey started from there. My papa used to make research notes about many small cap companies because he is more interested in small cap companies as well, because you can get multi-bagger kind of returns or huge wealth creation in small cap stocks only. So he used to make research notes about companies, how are the companies working, what are their promoter holdings, what is their business, what are the future forecast for their earnings. So I was not interested at that time, but on a day my father told me, my father asked me to make some notes about any company he was studying about in a company's shareholding pattern. So he just told me that, yeah, come here and make these notes. So he told me some of the points that, yeah, write this, write 75% promoter holding, 10% in public, this much in weaker hands, this much in stronger hands. So actually, I wasn't interested at that time as well, but I was interested in laptop rather than the learnings, because at that time, at that age when you are 11 years old and you are getting laptop for studying anything, you will accept that whether you will like it or not. So I used to study about the companies. The journey started from there. In next 3 to 4 years, I learned about the basics of the fundamentals, like how to study a company, what is their profile, how to see the promoter holding, whether it is increasing, how is the management approaching the investors, whether it is paying dividend you or not. So the journey started from there. In next 3 to 4 years, a good foundation was built, and I did not know at that time that I will opt share markets professionally. But once after I completed my 12th, so after that I thought that, yeah, I should take it seriously, because I was not interested in any field like engineering, or I was not interested in science actually, because I thought that I will do much better in any kind of business activities. So I opted share market because my papa was very much interested in law. So he wanted that I should become a lawyer, and then I should live a good life, because lawyers earn very well after they complete their studies. But I opted share market because I had passion for share markets. I really wanted to know share markets in depth, because after I completed my 12th, I learned a lot about technical analysis. So once I studied about the basics of technical analysis, then I knew that there is something in share markets which I still don't know. There isn't only fundamental analysis, but there are many such things which I should know, and which can help me to create a very good professional career in share markets. So once I studied about technical analysis, then I knew that, yeah, this is the time I should take it seriously. I should learn share markets. And after that, I'm professionally trading from last 4 years. And you can say that I'm a professional investor from last 4 years only, because
before that, I learned about share markets. I learned the basics of fundamentals. I invested in many companies just because of their fundamentals, just because of their management. But after that, I knew that yeah, you can stay with quality companies, as well as if you can stay with the trend, then you can maximize your gains. You can gain in short term, you can gain in longer term, you can gain in medium term. Whether your capital is big or your capital is small, that will depend. If you are a small trader, you can gain in short term as well, and then you can invest like what Mr. Jhunjhunwala, the big bull of India, did. He had very small capital. He traded in markets. He took some risk, but then he started value investing and created huge wealth. Even he says that value, there isn't anything which is comparable to value investing in terms of creating huge wealth in a longer run. So that's how the journey began, and I think I'm doing well so far because Great. right. Great, Mohit. I think that was a perfect introduction. You introduced yourself in terms of how do you did you start at the age of 11, and then you told the whole journey. I think that would be really inspirational and motivational to a lot of young people who want to enter into the market. But Mohit, जैसे मुझे भी एक hurdle आया था when I was going to the markets at an early age. जैसे आपने बताया कि your dad wanted you to be a lawyer. ऐसे ही हमारे इंडियन में एक ट्रेडिशन है कि स्टॉक मार्केट एज अ करियर जब हम लोग अपने पेरेंट्स को बोलते हैं तो सीधा ये आता है कि नो बेटा, इट्स अ रिस्की जोन, इट्स अ वेरी टफ प्लेस टू अर्न मनी, यहाँ लोग पैसा खोते हैं. So how did you convince your father or maybe your parents that नहीं मुझे स्टॉक मार्केट में जाना है, मुझे वहाँ करियर बनाना है, and maybe I'll be very successful at a young age also, because a lot of people believe कि maturity अभी नहीं आती at a young age. So how did you manage that? Because that was the biggest hurdle I think young people face. And उनको एक फिर एक confidence नहीं आता है. So I think your answer will provide them a lot of confidence that at a young age also you can enter markets. Because simple reason, my father knew, मेरे पापा जानते थे कि how does share market function, share market में कैसे work किया जाता है. So first of all he told me कि देखो मैं आपको इतना capital देता हूँ, मैं आपको ये capital 10 बार दूंगा, अगर आपने 10 बार खो दिया तो आपको शेयर मार्केट से एग्जिट करना है. ओके, इंटरेस्टिंग. हाँ, तो वो 10 बार खोने में भी आपको इतना टाइम लगता है कि आप मार्केट सीख जाते हो. मैंने लूज नहीं किया. आई हैव नेवर लॉस्ट माय एंटायर कैपिटल. आई लॉस्ट माय एंटायर कैपिटल फॉर वन टाइम एंड देन आई नेवर लॉस्ट माय कैपिटल. 100% कभी खोया नहीं मैंने बाद में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने यही बोला कि आपको मैं ये एक कैपिटल, ये सर्टेन अमाउंट 10 बार दूंगा, आपको देखना है कि आप इसको 10 बार अगर खो देते हो फिर आपके लिए शेयर मार्केट नहीं है. और वहीं से बस वो शुरू हुआ. बिकॉज उनको पता था, मतलब जो पहले से शेयर मार्केट में काम करते हैं उनको पता है कि अगर मेरा बच्चा चाहता है कि हाँ मुझे शेयर मार्केट में आना है, तो उन्हें पता है कि क्या प्रोसेस होना चाहिए उसको लाने का, कि जिससे कि वो जो उन्होंने बुरे टाइम फेस किए थे वो मैं ना करूं. तो वो सबसे बड़ी एक चीज होती है कि आपके सर के ऊपर किसी का हाथ होता है, तो तब आप थोड़ा सा फ्रीली एकदम काम कर सकते हो, फ्रीली आप लर्न कर सकते हो कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आपको मतलब हर महीने या फिर हर साल इतना रिटर्न कमाना है, नहीं तो आपका घर नहीं चलेगा. तो मेन चीज वो थी. थोड़ा सा एडवांटेज था मेरे लिए कि एक्चुअली मेरे पापा पिछले 30 साल से मार्केट में थे, तो उन्होंने काफी फेजेस देखे, बुल मार्केट्स देखे, बेयर मार्केट्स देखे, लॉसेस देखे, प्रॉफिट्स देखे. तो ही न्यू कि मतलब कैसे लाना चाहिए अगर आपका बच्चा इंटरेस्टेड हो शेयर मार्केट में. तो वो एक काफी बड़ा एडवांटेज रहा था मेरे लिए. ग्रेट. आई थिंक आई एब्सोल्युटली एग्री विथ योर थॉट कि एक आपके पास एक मेंटर या फिर एक ऐसा फादर फिगर होना चाहिए जो आपको मार्केट में गाइड करे एट द इनिशियल फेजेस. बिकॉज इनिशियल फेजेस में क्या होता है, वी आर वेरी वल्नरेबल, हमारे पास उतना नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं होता. एंड दैट टाइम इफ वी गेट अ फादरली फिगर, इनफैक्ट अगर हमारे कोई पेरेंट ही वैसे हो तो दैट्स अ ग्रेट बिगिनिंग. So I think it's great. We should congratulate your father to teach you and to bring you at such a stage. That's fantastic. So Mohit, as you told, अपने एक लाइन में आपने बताया कि you lost your capital once. So of course ये चीज हमारे सारे इन्वेस्टर्स के साथ होता है, सारे ट्रेडर्स के साथ होता है कि स्टार्टिंग में जब भी हम लोग आते हैं, it's a
कर्स बोल लीजिए या it's something which is very important for as an experience कि आप अपना कैपिटल लूज करते हो. So how did you come out of that and उसको उस फेलियर से आपने कैसे डील किया and how did you tell yourself कि नहीं कोई बात नहीं मैंने कैपिटल एक बार लूज किया but I have learned a lot of things from them and now I should go ahead with that learnings and वो आगे बढ़े because I think ये चीज बहुत लोगों के साथ होती है and they become disheartening and फिर वो मार्केट छोड़ देते हैं that no market is a bad place या मेरा कैपिटल पूरा जीरो हो गया. So what is your take on that? ओके तो मैं उस टाइम ज्यादा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे इंटरेस्टेड हो गया था. तो जो मेरा कैपिटल मैंने खोया था वो प्योरली ट्रेडिंग में खोया था. आई हैव नेवर लॉस्ट माय कैपिटल इन इन्वेस्टमेंट. जब भी इन्वेस्टमेंट किया तो बिकॉज आई न्यू फंडामेंटल्स एंड माय फादर इज आल्सो ए वैल्यू इन्वेस्टर, एन इन्वेस्टर यू कैन से. तो इन्वेस्टिंग में कभी नहीं, बट ट्रेडिंग में जब मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, बिकॉज कई बार ऐसा होता है यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड फॉर गेनिंग मनी क्विकली. तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में एक बार मैंने अपना कैपिटल लूज किया, बट बाद में मैंने थोड़ा सा सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम था जब एक कैपिटल लूज किया मैंने. सो आई डिड नॉट ट्रेड फॉर नेक्स्ट 2 months. आफ्टर दैट आई स्टार्टेड ट्रेडिंग विथ वेरी स्मॉल क्वांटिटीज. तो बाद में मैंने जाके सीखा कि आपका पोजीशन साइजिंग कितना इंपॉर्टेंट है, आपका मनी मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है. अगर आप उन दोनों के बिना ट्रेडिंग करते हो सो यू विल एंड अप लूजिंग योर कैपिटल. इफ नॉट इन 1 month, आफ्टर 1 year you will lose your entire capital. So मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग, ये दोनों चीजें आपके ट्रेडिंग में भले ही फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो, even if you are trading in futures and options, or if you are trading in cash, be it positional or longer term, आपका money management की, even if you are investing in any company or in any business, you should not go all out in one company or one sector, because जब उसका रिवर्सल होता है तब आपके पास आपको बहुत ही क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं, और अगर आप नहीं ले पाते हो उन डिसीजंस को, देन यू विल लूज योर कैपिटल. तो यहाँ से मैंने सीखा था कि डाइवर्सिफिकेशन का असली मीनिंग क्या होता है, आपका पोजीशन साइजिंग किस हिसाब से होना चाहिए. नेक्स्ट आपका मनी मैनेजमेंट, कि जैसे मैंने आपको बोला कि एक ही कंपनी में आपका सारा पैसा लगा दिया, या फिर एक ही सेक्टर में, जैसे भले ही अभी फार्मा सेक्टर काफी अच्छे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है कि फार्मा सेक्टर की काफी कंपनीज ग्रो होगी आने वाले टाइम में, देन आपको इन्फ्लेक्शन पॉइंट आते हुए भी एक सेक्टर में ऑल आउट नहीं जाना चाहिए. आपको डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए कि मैं एक सेक्टर अगर फार्मा में भी लगा रहा हूँ तो फार्मा में देयर आर डिफरेंट सेगमेंट्स लाइक सीडीएमओ, एपीआई, फॉर्मुलेशन, एनिमल फार्मा और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स है. तो आप उनको स्टडी कीजिए या फिर अलग सेक्टर्स को स्टडी कीजिए कि फार्मा ना होके टेक्सटाइल हो गया, या फिर मेटल्स हो गया, या फिर सीमेंट हो गया. तो हमेशा आपको अपना मनी मैनेजमेंट अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, प्लस हमेशा आपको पोजीशन साइजिंग पे ध्यान देना पड़ेगा. वो मैंने मेन सीखा था अपने लॉसेस से. Great. I think that two words, कि money management and risk management, जो कि position sizing से आता है, it is the most important thing and I totally agree with you कि ये दोनों चीज अगर किसी ने properly कर लिया तो at least you won't lose big money and at least आपका capital protected रहेगा, because as हम लोग बोलते हैं no capital market. So I think it's an amazing thought which you have told to our audience and I think everyone would agree with that. And अभी से मुझे इतना मजा आ रहा है कि the way you're talking about risk management, money management, it doesn't seem you are 19 years old and it seems that I'm talking to a mature investor who is aged more than 30. Again, I don't believe age is just a number, it just takes small bar है. But I think बहुत मजा आने वाला आज आपके साथ when you start your presentation. So before you start, just one last question and then I'll give you the floor. कि जैसे आपने बताया कि द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें अगर आप थोड़ा सा ब्रीफली अगर बता सको कि किस तरीके से आप अपना मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग करते हो इन इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, so that people at least get a little hindsight. Of course you will be maybe covering it in your presentation, but उसके पहले आप जब स्टार्ट करो, I think a small thing which you do because आप बहुत generously इसको फॉलो करते हो, I believe, right? So ये एक छोटा सा एक आप अगर हाइंडसाइट में बताओ तो that would be great for the listeners. Okay, तो मनी मैनेजमेंट
का अगर अपन कंसेप्ट देखें तो जब भी अपन अपना पोर्टफोलियो बना रहे होते हैं, अगर मैं अपने मॉडल पोर्टफोलियो की बात करूं तो आपको एक स्टॉक में लाइक अज्यूम कि अपन 25 lakhs मैनेज कर रहे हैं, अपन ने 25 लाख रुपए मैनेज करने हैं। तो फर्स्टली जब भी अपन ट्रेडिंग कर रहे हैं, अपने को एक साइज डिफाइन करना है, एक परसेंटेज टर्म डिफाइन करना है कि वी विल नॉट इन्वेस्ट मोर देन 15% और मोर देन 20% इन वन स्टॉक। सो आपको वो डिसाइड करना है कि अपन अब 25 लाख का फंड मैनेज कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग में वी शुड नॉट इन्वेस्ट मोर देन 10%, वी शुड नॉट ट्रेड मोर देन 10% ऑफ एंटायर कैपिटल। सो उससे अपना क्या होगा, इवन इफ वी हैव 5 ट्रेड्स ओपन, तब भी अपने पास एक अच्छा खासा कैश अमाउंट रहेगा अकाउंट में, जिससे कि अपन बाद में जो वॉलिटिलिटी आ जाता है कभी प्राइस में, उसको हैंडल कर सकते हैं। लाइक February या मार्च में जो फॉल आया था वो इतना क्विक था, उसमें आपका डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक होना चाहिए अगर आपको अपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस भी हिट करवाने हैं। उस टाइम में कई लोग अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं कर पाते हैं। उस समय में ये चीज बहुत काम आती है कि जब आपके पास पोजीशन साइजिंग हो, मनी मैनेजमेंट हो, आप एक स्टॉक में 10% से ज्यादा अपना इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, ट्रेड नहीं कर रहे हो पोजिशनल, तो वहां पे जो आपका कैश अमाउंट है, जो आपने कैश इन हैंड रखा है, वो काफी इम्पोर्टेंस प्ले करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि बाद में जाके जब भी प्राइस में शॉर्ट टर्म वोलेटाइल मूव्स आते हैं, तब जाके आप एक अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हो लोअर लेवल्स पे। तो सबसे पहली बात ये कि हमेशा कुछ ना कुछ आपके पास कैश रहना चाहिए। इवन इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग मोर देन 10% ऑफ योर एंटायर कैपिटल, दैट डज नॉट मीन कि आपके पास कैश रहेगा, बट यू विल हैव टू मैनेज योर कैश। कि आपको 25 लाख रुपए, आपने 2.5 लाख रुपए एक शेयर में डालने हैं, तो आपकी 10 पोजीशन कभी ओपन नहीं हो सकती, आपको कुछ ना कुछ कैश रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप मनी मैनेजमेंट का कर सकते हो। नेक्स्ट जो पोजीशन साइजिंग या फिर रिस्क रिवॉर्ड होता है, तो रिस्क आपने अपने को अपने सिस्टम के हिसाब से डिफाइन करना पड़ेगा इन इन्वेस्टिंग। जब तक बिजनेस अच्छा है, जब तक कंपनी ऑपरेशनली बेटर करते जा रही है, कंपनी अपने को वॉल्यूम ग्रोथ दे रही है, तब तक देर इज नो प्रॉब्लम। शॉर्ट टर्म वोलेटाइल मूव से इन्वेस्टर्स को कोई ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, एज लॉन्ग एज they are having strong conviction on the business and the company and the management। ट्रेडर्स के लिए एक आपका रिस्क रिवॉर्ड उनके सिस्टम के ऊपर रहेगा, बिकॉज इन ट्रेडिंग मेरे हिसाब से आपको 70% टेक्निकल्स एंड 30% फंडामेंटल्स यूज करने चाहिए, सो दैट आपको पता रहे कि हाँ कंपनी भी मैंने अच्छी चूज की है, 30% फंडामेंटल्स को दे रहा हूँ। बिकॉज ट्रेडिंग में आपका टेक्निकल्स बहुत ज्यादा वर्क करेंगे, उसमें आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस का रोल आ जाएगा कि if Loris is moving from 400 to 1600, when should I exit? बिकॉज मुझे गेन्स मैक्सिमाइज करने से मतलब है। तो वहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काफी रोल आ जाता है। वहां पे आप टारगेट्स डिफाइन करने के लिए आपको टेक्निकल्स की जरूरत पड़ती है। तो ट्रेडिंग में आपको टेक्निकल्स को ज्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, जबकि इन्वेस्टिंग में आपको सिंपल है, अपना मनी मैनेजमेंट बेटर करना पड़ेगा कि यू शुड बी डाइवर्सिफाइड, you should have a diversified portfolio, and you should have some cash in hand, even if there are very good times, तब भी आपके पास कुछ ना कुछ, इवन 5% ऑफ कैपिटल, इवन 10% ऑफ कैपिटल, आपके पास कैश हमेशा रहना चाहिए। ग्रेट ग्रेट। आई थिंक मोहित ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सम अप किया कि द वे यू शुड मैनेज योर मनी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग एज वेल एज ट्रेडिंग। कि इन्वेस्टिंग में हमें डेफिनेटली अपना मनी मैनेजमेंट की नंबर ऑफ स्टॉक्स ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो, ऐसा नहीं हो कि एक सेक्टर या एक स्टॉक में हम लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग ऑफ कोर्स द रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। So I think that's a great beginning already. बहुत मजा आ रहा है। And I think now it's time for me to give you the floor, where I think you'll be telling our people about how you do the techno funda investing, and I think it would be very very interesting. So I would request everyone that please stay in till the end, because Mohit is going to tell us his secret of techno funda investing, and it would be great learning. And I give you the floor to you, Mohit, so that you can start your presentation. Thank you. Okay, Yash ji. Okay. I hope you all can see my screen. Yes, we can see your screen. Okay. Well.
Now, can you see the keynote file? आपको ये presentation दिख रहा है? Yes, Technofunda approach to value investing. Right. So we will discuss about how can we do value investing by Technofunda approach. So 1 minute, I am getting some notifications. Okay, chat notifications. Okay. I hope you all can hear me. Am I audible? Yes, perfectly. ओके, सो सिंपल, इसमें मैंने बहुत ही आपका सिंपल रखा है कि अपन कैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, बिकॉज इन ट्रेडिंग आपको 70% टेक्निकल्स यूज करने पड़ेंगे while you will use 30% fundamentals so that you can stay with quality companies and you can stay with the trend as well. But whenever you are doing value investing, तो आपका टेक्नो फंडा अप्रोच थोड़ा अलग रहेगा कि टेक्निकल्स आपको जितना कम हो सके उतना कम यूज करना है और ज्यादातर फंडामेंटल्स को यूज करना है. Yes, I am getting some disturbance. Yeah, it's fine, Mohit. You can continue. Okay. Yeah. Okay, so while investing your money, आपको fundamentals और अगर दूसरे वर्ड्स में मैं कहूँ तो बिजनेस को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा. और जैसे मैंने नीचे लिखा भी है, वैल्यू इन्वेस्टिंग इज इक्वल टू पेशेंस ऑन योर स्टॉक, पेशेंस ऑन योर इन्वेस्टमेंट एंड कन्विक्शन ऑन द मैनेजमेंट. वैल्यू इन्वेस्टिंग का सीधा मतलब है कि आपको अपने स्टॉक पे आप स्टॉक एक कितना लंबा होल्ड कर सकते हो. बिकॉज अगर अपन एग्जांपल भी कंसिडर करें तो एक टाइम पे अवंती फीड्स का भी प्राइस 20 रुपए था और वो 200 रुपए भी हुआ था और वो 2000 रुपए भी हुआ था. तो आप कितना पेशेंस रख सकते हो अपने स्टॉक पे या फिर अपने इन्वेस्टमेंट पे. नेक्स्ट, आप मैनेजमेंट पे कितना कन्विक्शन रख सकते हो, बिकॉज एट लास्ट मैनेजमेंट ही है जो आपकी कंपनी को रन करेगा. जो कोई भी कंपनी के अच्छे या बुरे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो हमेशा मैनेजमेंट रहेगा. तो सिंपल है, वैल्यू इन्वेस्टिंग जब भी आप करते हो तो वहां पे बिजनेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, फंडामेंटल्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है. वेल टेक्निकल्स का रोल इतना ज्यादा नहीं रहेगा. इवन आप यूज कर सकते हो टेक्निकल्स को कि आप शॉर्ट टर्म में एंट्री कैसे कर सकते हो, आप शॉर्ट टर्म की एंट्री को लॉन्गर टर्म के लिए ट्रेल कैसे कर सकते हो, उसमें आपका टेक्निकल्स का यूज आएगा. बट फॉर वैल्यू इन्वेस्टिंग यू शुड यूज फंडामेंटल्स. मोर देन 90% फंडामेंटल्स आपको यूज करने चाहिए. आपको बिजनेस क्या कर रहा है कंपनी का, उस पर ज्यादा आपको तवज्जो देनी चाहिए. सो आज मैंने सिंपल एग्जांपल लिया श्री सीमेंट्स का, बिकॉज ज्यादातर लोग मानते हैं कि कमोडिटी स्टॉक्स जो रहते हैं वो काफी साइक्लिकल स्टॉक्स होते हैं और सीमेंट को भी एक कमोडिटी अपन मान सकते हैं. सो ज्यादातर लोगों का अप्रोच ये रहता है कि कमोडिटी स्टॉक जो रहते हैं वो काफी साइक्लिकल रहते हैं. बट श्री सीमेंट ने ऐसा करके दिखाया कि उसने अपनी ग्रोथ से अपने शेयर होल्डर्स को इतना गेन दिया कि वो एक कमोडिटी प्ले नहीं रह के एक ग्रोथ प्ले बन गया. That's why हमने टाइटल रखा. Before we start with this, Shree Cement, I think I'll like to give a disclaimer between you also and me also. Ki Mohit is telling this for purely educational purpose. There is no recommendation, and if you are investing or maybe trading, so please consult your advisor, because it's very important to give us a disclaimer. Because Mohit ने study के हिसाब से इसको explain किया है for educational purpose. Yeah, sorry Mohit, go ahead. Right. It is an example, not any recommendation. That is disclaimer from our side. It is just an example, not an recommendation. तो श्री सीमेंट अगर अपन बात करें कि एक कमोडिटी स्टॉक जो एक बहुत अच्छा ग्रोथ प्ले बना, इसमें क्या ऐसी तीन चीजें रही, 3 पॉइंट्स रहे जिसकी वजह से श्री सीमेंट एक साइक्लिकल स्टॉक ना बन के एक ग्रोथ प्ले बना, एक ऐसा स्टॉक ना बन के कि जिसमें जब डिमांड आएगी तभी वो बढ़ेगा. एक ऐसा स्टॉक बना कि जिसमें ग्रोथ आई, जिसमें मैनेजमेंट ने अच्छे से ग्रो किया. क्या चीजें रही वो अपन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले कि श्री सीमेंट में हुआ क्या ऐसा कि ज्यादातर लोग मानते हैं कि
प्योरली जो कमोडिटी प्ले होते हैं वो साइक्लिकल होते हैं, और इन्वेस्टर उनमें तभी रिटर्न पाता है जब कोई भी साइकिल रिटर्न होती है, डिमांड वापस से आती है। जैसे इसके सबसे बड़े एग्जांपल है कि मेटल सेक्टर जो हो गया, स्टील सेक्टर हो गया, उनको अपन साइक्लिकल बोलते हैं। जो भी किसी कमोडिटी पे डिपेंडेंट रहेंगे उनको अपन साइक्लिकल स्टॉक बोलते हैं। तो ज्यादातर लोग मानते हैं कि साइक्लिकल स्टॉक जो रहते हैं उनकी जब साइकिल रिटर्न होती है और या फिर सेक्टर में कोई डिमांड वापस आती है, टेलबाइंस होते हैं, तभी उनमें आपको एक अच्छा खासा प्राइस में ट्रेक्शन मिलेगा। बट इसमें ऐसा क्या हुआ कि CAGR अभी आप देखिए सीमेंट सेल्स की, अपन कंसिडर कर रहे हैं 2004 से लेके अभी तक, तो जो श्री सीमेंट के सीमेंट सेल्स थे वो 2.4 मेट्रिक टन 2.4 मिलियन टन से बढ़कर 25 मिलियन टन हुए, विच इज a CAGR of 13%। सो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जो उनका मेन बिजनेस है उसमें एक कंटिन्यूअस ग्रोथ रहा। सेकेंड, आप सेल्स का पॉइंट कंसिडर करेंगे, सेल्स उनके जो ओनली 500 करोड़ के थे इन 2004, वो ग्रो होके हुए 12,000 करोड़ के। एंड इसमें कंपनी ने पोस्ट किया CAGR ऑफ 17.5% इन 15 और 16 ईयर्स। नेक्स्ट आप अगर प्रॉफिट्स का देखेंगे तो प्रॉफिट्स इफ यू सी 20 करोड़ का प्रॉफिट था, विच इज रफली 4% ऑफ देयर रेवेन्यूज। 500 करोड़ के रेवेन्यूज पे उनका 20 करोड़ का प्रॉफिट था, 4% मेनली उनका आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन था, NPM था। वहां से उन्होंने 1500 करोड़ का प्रॉफिट क्लॉक किया इन 2020, विच इज a CAGR ऑफ 24%। और आप पहले अगर देखोगे 4% से अभी अराउंड 15%, सॉरी 12% पे उनके नेट प्रॉफिट मार्जिन आ गए। सो EBITDA अगर आप देखोगे फ्रॉम 100 करोड़ टू 4000 करोड़, EBITDA परसेंटेज अगर आप देखोगे फ्रॉम 17% टू 33.2%। यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक कमोडिटी प्ले ने, कमोडिटी स्टॉक जिसको लोग मानते थे कि साइक्लिकल स्टॉक है, उसने इतने अच्छे केगर पे अपने रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स, EBITDA मार्जिन कैसे ग्रो किए। CAGR इन प्राइस रहा 42%। तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलती है कि जितने CAGR से उनके सेल्स और प्रॉफिट्स ग्रो नहीं किए, उससे कई ज्यादा CAGR से उसके प्राइस में ग्रोथ आता है। तो इससे आपको एक चीज सीखने को मिलती है, जब भी किसी कंपनी के रेवेन्यूज में या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में एक कंटिन्यूअस ग्रोथ रहती है, तब मार्केट उसको एक अच्छा खासा वैल्यूएशन देने को तैयार रहता है, जो कि श्री सीमेंट में हुआ। जब आप उसके EBITDA देखोगे 21.6% के CAGR से बढ़े, जबकि प्राइस में जो CAGR रहा बिटवीन 2001 टू 2020 वो था 42% का। तो और उसमें भी आप प्लस कर लो डिविडेंड ऑफ ₹20.6 lakhs इफ यू हैड इन्वेस्टेड 1 lakh इन इट। तो श्री सीमेंट में अगर आप देखेंगे CAGR प्राइस में रहा 42%, आपको डिविडेंड्स मिले 20.6 lakhs के। और उस टाइम पे जब इंडिया को इतना लोग नहीं जानते थे, अब इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है सीमेंट का वर्ल्ड में, ये आपके लिए एक फैक्ट है। तो जब भी कोई कंपनी अपने रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स कंटिन्यूअसली ग्रो करती है इन डबल डिजिट, CAGR अगर उनका डबल डिजिट में रहता है, तो मार्केट उनको ज्यादा वैल्यूएशन देने को तैयार रहता है। इसी वजह से ये एक कमोडिटी स्टॉक नहीं बन के एक ग्रोथ प्ले बना। इवन अगर आप कंसिडर करें उस समय की बड़ी कंपनियों को, अंबुजा सीमेंट हो गया, ACC हो गया, उन्होंने इतना ग्रो नहीं किया, तब उनको मार्केट ने बहुत ज्यादा वैल्यूएशन नहीं दिया जितना मार्केट ने श्री सीमेंट को दिया। इसके पीछे क्या रीजन थे वो अभी अपन डिस्कस करेंगे कि इतना जो 42% CAGR आया 20 सालों में, उसके क्या रीजन थे। कि बिकॉज ये कोई छोटा फिगर नहीं है कि 42% CAGR 20 साल तक मेंटेन करना। तो इसमें आपको 3 पॉइंट नोटिस करने पड़ेंगे। फर्स्ट वन इज ऑपरेशनल एफिशिएंसी, सेकेंड वन इज कैपिटल एलोकेशन, थर्ड मैनेजमेंट एंड देयर विजन फॉर लॉन्गर टर्म। सो ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जब यहाँ पे आपको एक पॉइंट नोटिस करना पड़ेगा श्री सीमेंट के लिए कि उस टाइम पे अराउंड 2002-2003 जब ज्यादातर सीमेंट कंपनियां अपने सीमेंट प्रोडक्शन के लिए कोल यूज करती थी, तब श्री सीमेंट वाज द फर्स्ट कंपनी विच यूज्ड पेट कोक, विच इज ए वेस्ट। जो पेट्रोलियम कंपनीज होती है वो पेट कोक एक वेस्ट की तरह माना जाता है, जिसको श्री सीमेंट फर्स्ट कंपनी थी
पेट कोक को यूज करने वाली, which was 40% cheaper than coal. फर्स्ट पॉइंट ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मतलब अगर आप देखेंगे, अगर कोई कंपनी कोल यूज कर रही है, उससे 40% चीपर आपको पेट कोक मिल रहा है. श्री सीमेंट वाज द फर्स्ट कंपनी टू यूज पेट कोक. वहां से आपको एक दिखेगा चीज कि कंपनी के कॉस्ट जो है, कंपनी का जो फ्यूल कॉस्ट है वो नीचे आएगा, जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आएगा. सो फर्स्ट श्री सीमेंट ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कॉस्ट रिडक्शन किया श्री सीमेंट ने. Shree Cement reduced their cost effectively, and in 2020 they have minimum fuel and power costs in their industry. उन्होंने उस समय पे जब सारी सीमेंट कंपनी कोल यूज करती थी, उस समय पे उन्होंने पेट कोक यूज किया, विच वाज 40% चीपर देन कोल एट दैट टाइम. और अभी ये हालत है कि श्री सीमेंट अपने इंडस्ट्री में सबसे लोवेस्ट फ्यूल एंड पावर कॉस्ट, इवन फ्रेट कॉस्ट भी श्री सीमेंट के सबसे कम है, जो आपको एक दिखाता है कि मैनेजमेंट कितना एग्रेसिव था कॉस्ट रिडक्शन के लिए, जिससे उनके मार्जिन ऊपर आए और जिससे उनके शेयर होल्डर्स को भी अच्छा खासा बेनिफिट हो. एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस इनोवेशन एंड द विजन ऑफ देयर मैनेजमेंट. सेकेंड, कैपिटल एलोकेशन. बिकॉज एक अच्छा अगर एंटरप्रेन्योर जो होगा, वो जानेगा कि आपके शेयर होल्डर्स का पैसा या फिर आपका खुद का कमाया हुआ पैसा जो कंपनी अपना प्रॉफिट करती है, उसको किस हिसाब से मैनेज करना है, हाउ कैन ही री इन्वेस्ट दैट मनी इन द कंपनी. सो श्री सीमेंट डिड नॉट रेज एनी फंड्स फ्रॉम देयर शेयर होल्डर्स टिल 2019. 2019 के बाद में उन्होंने एक QIP किया, जिसमें उन्होंने अपने शेयर होल्डर से पैसा रेज किया. उससे पहले तक जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ था, वो कंपनी के इंटरनल एक्रूअल्स के द्वारा फंडेड था. और उन्होंने वो कैपेक्स बहुत जल्दी में नहीं किया था कि एक ही साथ में कैपेसिटी आपको एक्सपांशन करना है. उन्होंने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपना कैपेसिटी ग्रो किया. जैसे जैसे उनके पास प्रॉफिट मिलता था, वैसे वैसे वो अपना जो कैपेसिटी थे वो एक्सपांड करते थे. तो ये आपको एक सबसे बड़ी चीज देखनी है कि जो आपकी कंपनी का मैनेजमेंट है, जो आपके कंपनी के चेयरमैन है, वो किस, जो आपके कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो किस हिसाब से डिसीजन लेते हैं, कब कैपेसिटी एक्सपांशन के लिए जाते हैं. बिकॉज जो कंपनी अपने ही रिटेन्ड अर्निंग्स से आगे जाके कैपेसिटी एक्सपांशन करती है, उनको कोई भी डेट का जरूरत नहीं होता है. इवन आप देखो तो श्री सीमेंट ने कभी भी कोई बड़ा डेट नहीं लिया. इवन श्री सीमेंट अभी भी वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है. तो श्री सीमेंट का जो भी कैपेसिटी एक्सपांशन हुआ था, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ था, वो सारे इंटरनल एक्रूअल्स और थ्रू देयर रिटेन्ड अर्निंग्स से ही हुआ था. उन्होंने कोई भी बैंक से बहुत बड़ा डेट लिया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ. और इसमें भी जो सबसे बड़ा पार्ट प्ले करता है कि जो भी उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, वो उन्होंने स्लोली बट कंसिस्टेंटली किया था. उन्होंने हर साल थोड़ा थोड़ा कैपेसिटी एक्सपांशन करते गए और वैसे उन्होंने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान किया. तो ये आपको एक सबसे बड़ी चीज देखनी है कि उन्होंने एक प्लान्ड वे में अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो किया, विदाउट टेकिंग एनी ह्यूज डेट इन देयर बुक्स, और फंड रेज नहीं किया उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स से टिल 2019. तो ये बहुत एक अच्छी चीज आपको देखने को मिलेगी. उन्होंने कैपिटल एलोकेशन कितने अच्छे ढंग से किया कि उन्होंने अपना कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज किया स्लोली बट कंसिस्टेंटली. ये आपको 2 पॉइंट हमेशा देखने चाहिए एक कंपनी में कि उनका ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसा है, उनके मार्जिन विद टाइम इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. और सेकंड, कैपिटल एलोकेट किस हिसाब से कर रही है कंपनी, वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर एक प्लान वे में कर रहे हैं, अपना कैपेसिटी एक्सपांशन एक प्लान वे में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ये 2 पॉइंट आपको हमेशा देखने पड़ेंगे. बिकॉज अगर कंपनी ऑपरेशनली बेटर परफॉर्म नहीं कर रही, भले अपने कॉस्ट रिड्यूस करके करे या फिर कोई भी अदर वे से करे, एक कंपनी हमेशा अपने ऑपरेशनली नंबर्स बेटर आने चाहिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर, ताकि उनके इन्वेस्टर्स का भी एक अच्छा पैसा बने. सेकेंड, कैपिटल एलोकेशन बेटर होना चाहिए कंपनी का. कंपनी ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा डेट लेके कोई अपना कैपेसिटी एक्सपांशन करती है, जिसकी वजह से उनको उनके शेयर होल्डर्स को भी काफी अच्छे गेन्स मिले. तो एक कंपनी जो अपने शेयर होल्डर्स के लिए भी सोचती है, आपको उस कंपनी में ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बारे में सोचती है, जो अपने कैपिटल एलोकेशन और इन अदर वर्ड्स जो अपन ट्रेडिंग में करते हैं अपना मनी मैनेजमेंट, एक कंपनी कितने अच्छे से मनी मैनेजमेंट कर रही है, जैसा श्री सीमेंट ने किया. श्री सीमेंट ने कोई भी बड़ा डेट नहीं लिया,
सारा अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो फंड किया उन्होंने अपने इंटरनल एक्रूवल से, अपने जो रिटेन्ड अर्निंग्स से, जो पहले के साल के प्रॉफिट्स थे उनसे उन्होंने फंड किया। सो उन्होंने एक प्लान वे में किया। अब अगर अपन थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो मैनेजमेंट एंड देयर विजन फॉर लॉन्गर टर्म। सो जो बांगर फैमिली थे, उन्होंने श्री सीमेंट को 1992 में टेक ओवर किया था, और एक छोटी कंपनी जो अभी छोटी कंपनी है उन्हीं से टेक ओवर किया था। उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको, बट दैट कंपनी इज ऑल्सो लिस्टेड और वो अभी काफी अच्छा भी कर रही है। तो बांगर फैमिली ने एक बहुत ही छोटी कंपनी जो अभी है, उनका भी श्री से ही नाम शुरू होता है, सीमेंट कंपनी है, उनसे एक्वायर किया था इन 1992। और उस समय बीजी बांगर थे उनके चेयरमैन, जिन्होंने एक्वायर किया था। सब शुरुआत यहाँ से हुई श्री सीमेंट की। और बाद में एक आपको 2002 में देखने को मिलेगा कि श्री सीमेंट को एक ऑलमोस्ट मर्जर हो गया था श्री सीमेंट का एक फ्रेंच कंपनी के साथ में। बट एट द एंड टाइम जो बीजी बांगर के आपके सन थे, उन्होंने, जो एच.एम. बांगर थे, उन्होंने अपने फादर को बोला कि हम ये 50-50 जेवी इनके चक्कर में नहीं जाएंगे, मेरा विजन बड़ा है, हम कुछ कंपनी को अलग लेके जाना चाहते हैं। तो उन्होंने अपना विजन शो किया कि एक फ्रेंच कंपनी जो 50-50 एग्रीमेंट में आ रही थी उनके साथ, जो 50-50 फंडिंग करने वाली थी, उन्होंने उनको हटा के एट द एंड टाइम उन्होंने उनको हटाया बिकॉज ही हैड डिफरेंट प्लान्स एंड ग्रेटर विजन फॉर द कंपनी। एच.एम. बांगर ने वो जो डिसीजन था, वहां से आपको पता चलता है कि अगर कंपनी ने इतना बड़ा स्टेप लिया, एक फ्रेंच कंपनी उसको एक्वायर करने आ रही है एंड ही इज रिजेक्टिंग दैट ऑफर, वहां से आपको उसका ऑपरेशनली कंपनी कैसा परफॉर्म करती है फ्रॉम 2002 वो देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रॉम 2002 अगर आप देखेंगे कंपनी का परफॉर्मेंस विद टाइम इम्प्रूव होता गया। एच.एम. बांगर के बारे में एक और अच्छा फैक्ट है कि एच.एम. बांगर जो चेयरमैन है श्री सीमेंट के, वो हर साल एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, जो कि उनका मेंटल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं फिजिकली भी और मेंटली भी दोनों तरीके से अपने आप को पूरा फिट रख सकूं। इस वजह से वो मेंटली अपने आप को चेक करने के लिए हर साल एमबीए एंट्रेंस का एग्जाम देते हैं, एंड विच मेक्स हिम ए ग्रेट एंटरप्रेन्योर। तो जो भी कंपनी ये 3 पैरामीटर्स को फुलफिल करती है, बहुत ही बेसिक आपके पैरामीटर्स है, और काफी लोगों को लगेगा कि ये सब जानते हैं हम, बट ये सब जानते हैं तभी तो ये काम के हैं, बिकॉज बहुत कम लोग इनको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, बहुत कम लोग इनको यूज कर पाते हैं, बिकॉज काफी एडवांस थ्योरीज भी आ जाती है आजकल। सो जो भी कंपनीज इन 3 पैरामीटर्स को फुलफिल करती है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मनी मैनेजमेंट और कैपिटल एलोकेशन, एंड थर्ड मैनेजमेंट इन देयर विजन फॉर लॉन्गर टर्म, तो इन 3 चीजों को जो फुलफिल कर पाती है, वो कंपनी आप बोल सकते हो कि नेक्स्ट श्री सीमेंट बन सकती है, या फिर नेक्स्ट आपके लिए एक अच्छा खासा मल्टीबैगर बन सकती है। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, एक बहुत ही छोटी फार्मा की कंपनी थी, कंपनी है सॉरी, उसने एक कंपनी को 1.5 करोड़, ओनली 1.5 करोड़ में कुछ साल पहले एक्वायर किया, और उन्होंने उस कंपनी से कुछ महीने बाद या फिर कुछ क्वार्टर बाद उसको एक्वायर करने के सिर्फ एक क्वार्टर में उन्होंने 2 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स उस कंपनी से कलेक्ट किया। मतलब जिस कंपनी को उन्होंने सिर्फ 1.5 करोड़ में एक्वायर किया और एक ही क्वार्टर में वो उससे 2 करोड़ से ज्यादा का एबिट कमाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने अपना जो कैपिटल था वो किस हिसाब से एलोकेट किया, कितना स्मार्टली एलोकेट किया। So for finding such opportunities, you will have to dig down and analyze the entrepreneurs which can fulfill these criteria. जो भी serious entrepreneurs है, जो operationally अपने आपको efficient बनाना चाहते हैं, और जितना ज्यादा अपने बिना डेट लिए विथ फंडिंग विथ इंटरनल एक्रूवल्स कर सकते हैं, उन मैनेजमेंट को आपको देखना चाहिए जिनका विजन आज का नहीं हो या शॉर्ट टर्म का नहीं हो, उनका विजन अगले 3 साल का हो, अगले 5 साल का हो। इन केस ऑफ लोरस एज वेल, लोरस में अपन जो आज देख रहे हैं वो आज शुरू नहीं हुआ, वो काफी सालों पहले का प्लानिंग था जो आज जाके सबको पसंद आ रहा है। सो दिस वाज द फंडामेंटल side of our analysis. So I hope Yashji you are listening.
Yes, ji, am I audible to you? Yeah, you're audible. Right. So this was the fundamental part. So अगर किसी को भी कोई डाउट है तो अपन अभी ले सकते हैं, बिकॉज बाद में टेक्निकल्स का अपन थोड़ा सा देखेंगे. फंडामेंटल्स में अगर किसी को कोई डाउट हो. I think Mohit, there were questions coming बीच में थोड़े बहुत थे, but I think questions last में ले, that would be better, or should we take it now? अभी ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज बाद में टेक्निकल्स दोनों मिक्स हो जाएंगे. Okay, so if anyone has any doubt, you can just write it down. A main concern is how to find these kind of companies. Someone has asked. सिंपल, यू विल हैव टू रिसर्च. मतलब आपको कोई हो. There is no shortcut to success, of course. There is no shortcut. There is no holy grail in markets. You will have to research. You will have to read the annual reports of the companies. You will have to enter in that business which is at inflection point. Like जिस business को आप जितना जल्दी पकड़ पाओगे जो inflection point पे होगा. जैसे फार्मा कुछ महीने पहले आपको बहुत ही चीपर रेट्स पे मिल रहे थे, और जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे था सेक्टर, तो जो सेक्टर इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे रहेगा, जिस सेक्टर में डिमांड बिल्डअप होना चालू होता है, वो आप ट्रैक कर सकते हो. सिंपल, आपको एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको कौन कॉल सुनने पड़ेंगे कंपनीज के, सो दैट यू कैन नो कि कौन सा एंटरप्रेन्योर, कौन सा मैनेजमेंट आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है. That is the best way. I think some people are asking what is the meaning of inflection point, which you can even elaborate on it. हाँ, inflection point पे questions आ रहे हैं एक दो. इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन जनरल आप बोल सकते हो जिस कंपनी में, जिस सेक्टर में बहुत अच्छा ग्रोथ आने का पॉसिबिलिटी हो, अच्छा खासा डिमांड बिल्डअप होना चालू हो गया, आगे का फ्यूचर अच्छा दिखता है. लाइक जो सेक्टर बहुत ही अभी तक कंसोलिडेट कर रहा था, बट उसमें आगे आके फ्यूचर का बहुत आपको अच्छा दिख रहा है. इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे मतलब बहुत ही क्विक ग्रोथ दिख रहा है आपको आने वाले टाइम में. सो उसमें आप सेक्टर पे भी ना जाके आप कंपनीज को आपको स्टडी करना पड़ेगा. जो कंपनीज, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट होता है, उनको आपको स्टडी करना पड़ेगा. रेशियोज में भी आपको बता सकता हूँ सारे, कि आप ROE देख लीजिए, आप ROC देख लीजिए. बट जिन मैनेजमेंट का विजन लंबा होगा, जिन मैनेजमेंट का विजन अच्छा होगा, जो ट्रांसपेरेंट होंगे अपने शेयर होल्डर्स के लिए, ऑपरेशनली बेटर अपने कंपनी को करने का उनका विजन होगा, वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे. इसीलिए मैंने ये 3 पॉइंट कंसिडर किए हैं, बिकॉज ज्यादातर लोग आपको ROE, ROC, मार्जिन, एबिटा, ये सब कुछ बता देंगे, बट सबसे जो मेन चीज है वो है कि आपका मैनेजमेंट किस हिसाब से, आपका बिजनेस ऑपरेशनली किस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है, और आप अपना कैपिटल किस हिसाब से एलोकेट कर रहे हो. Okay. So we have got a question. What are the key factors that we must look for or observe in the balance sheet chart annual reports? Balance sheet chart and annual report, right? So आपको annual report में you should always read the chairman's statement, कि चेयरमैन अपने कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं. वो अपना जो भी विजन देते हैं, अगले 1 साल का देते हैं या फिर अगले क्वार्टर का देते हैं. सो सी इफ दे कैन डिलीवर ऑन दैट. यू कैन हियर देयर कॉन कॉल में भी आपका मैनेजमेंट एक गाइडेंस देता है आपको, कि हम अगले क्वार्टर में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम अगले साल तक इस फाइनेंशियल ईयर का हमारा 100 करोड़ का प्रॉफिट एक्सपेक्टेंसी है. तो आप देखिए कि क्या आपका मैनेजमेंट उसको डिलीवर कर पाने में सक्सेस पा रहा है. इफ यस, देन या दे आर डूइंग वेरी वेल. सो एनुअल रिपोर्ट्स में हमेशा आपको चेयरमैन का स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए, और उसमें काफी चीजें, फिर एनुअल रिपोर्ट में आपका बैलेंस शीट आ जाता है. सो बैलेंस शीट में यू शुड लुक एट डेट, देयर लोन और देयर बोरोविंग्स वैल्यू, कि उनका डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है. डेट टू इक्विटी रेशियो हमेशा कम रहना चाहिए, और डेट टू एसेट रेशियो भी आप देख सकते हैं इन बैलेंस शीट. एंड आपको रिजर्व्स का वैल्यू देखना चाहिए. नेक्स्ट, अगर कंपनी कोई कैपेक्स कर रही है तो यू शुड सी देयर ग्रॉस ब्लॉक वैल्यू और देयर फिक्स्ड एसेट वैल्यू. नेक्स्ट आपको अगर देखना है तो आप लाइक उनका लॉन्गर टर्म डेट कितना है. लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट होता है, ये दो चीजें आप देख सकते हो कि उनका लॉन्ग टर्म डेट ज्यादा है या फिर शॉर्ट टर्म डेट ज्यादा है. शॉर्ट टर्म डेट हमेशा
अगले 1 साल में पेएबल रहता है, जबकि लॉन्ग टर्म डेट 1 साल से ज्यादा जो कंपनी लोन लेती है, जिसमें इंटरेस्ट भले ही कम लगता है बट वो काफी लंबे टाइम का लोन रहता है। तो ये कुछ चीजें देख सकते हैं। और सबसे मेन चीज कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी कितना है आपकी कंपनी पे, बिकॉज वो एक आपका अनवांटेड आपके लिए ट्रबल आ जाता है कई बार जब कोई भी कंपनी पे कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो आप हमेशा देख सकते हो बैलेंस शीट में और आपके एनुअल रिपोर्ट्स में। मैन आप कॉन कॉल्स अगर किसी कंपनी की होती है तो कॉन कॉल्स आप जरूर अटेंड कीजिए, उनको आप बहुत ही ध्यान से सुने कि मैनेजमेंट आपको क्या गाइड कर रहा है, मैनेजमेंट क्या उस पर डिलीवर कर पा रहा है। बिकॉज अभी काफी ऐसे फार्मा कंपनीज भी है जो वो बोल रही है वो उन पे डिलीवर कर रही है और इसीलिए वो सस्टेन कर रही है। Great. So there's a question that which sector is at inflection point as of now? Can you name some? Which sector is at inflection point? I would say कि अभी काफी अच्छे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे ऑटो सेक्टर, बिकॉज आप अगर ऑटो के नंबर्स भी देखेंगे वो काफी अच्छे इंप्रूव हो रहे हैं और आगे का जो आपको आउटलुक दिखता है वो भी काफी अच्छा है। अंटिल और अनलेस की कोई कोविड जैसा सिचुएशन वापस ना आ जाए सेकेंड वेव, वो अपन कुछ नहीं बोल सकते। बट अभी के हिसाब से ऑटो सेक्टर जो है वो काफी अच्छे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है और काफी नीचे के वैल्यूएशंस मिल रहे हैं आपको बहुत अच्छी। जैसे एमआरएफ जो एक समय पे अराउंड 80,000 रुपए 85,000 का हाई है उसका शायद, वो अभी आपको अराउंड 67,000 में मिल रहा है। तो ऑटो सेक्टर की काफी कंपनीज आपको बहुत ही नीचे के वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। अगर आप ऑटो एंसिलरीज भी कंसिडर करें जो एक ऑटो का ही सेगमेंट है, ऑटो का ही पार्ट है, तो ऑटो सेक्टर मेरे हिसाब से एक अच्छे खासे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है। ओके परफेक्ट। आई थिंक मोहित बाकी बहुत सारे क्वेश्चन स्टॉक स्पेसिफिक है या बहुत ही बेसिक्स है। सो आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग अबाउट आरओई आरओसी या एनुअल रिपोर्ट्स कैसे देखें या कॉन कॉल कैसे अटेंड करें। तो आई थिंक दीज आर वेरी बेसिक। आप जस्ट गूगल करोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड कॉन कॉल। आप ऑलमोस्ट पीएससी के वेबसाइट या कंपनी की वेबसाइट से देख सकते हो। सो आई थिंक मोहित यू कैन गो अहेड विद द टेक्निकल पार्ट। बाकी और जो क्वेश्चंस होंगे लास्ट क्यूएनए में हम लोग ले लेंगे बाकी क्वेश्चंस को। ओके सो अभी अपन टेक्निकल्स में आएंगे। टेक्निकल्स में प्योरली अपने को चार्ट यूज करने पड़ेंगे, थ्योरी इतना ज्यादा नहीं रहेगा। तो ज्यादातर अपन चार्ट्स में ही समझ पाएंगे कैसे अपन टेक्निकल्स को यूज कर सकते हैं। सो बाय डूइंग फंडामेंटल एनालिसिस वी कैन नो अबाउट द बिजनेस, we can know about the company, we can know about the management, but by technical analysis we can catch the trend, बिकॉज क्वालिटी के साथ रहना एक बात है और सेकंड आपको ट्रेंड के साथ रहना टू मेक क्विक मनी, आपको ट्रेंड के साथ रहना भी बहुत जरूरी रहता है। सो फ्यू थिंग्स विच माइट हेल्प यू इन टेक्निकल्स वाइल इन्वेस्टिंग, बिकॉज ट्रेडिंग में हमेशा हेल्प करेगा आपका टेक्निकल्स, बट वाइल इन्वेस्टिंग आपको कुछ चीजें यूज कीजिए जिससे आपको थोड़ा बेटर आइडिया लगे कि हाँ प्राइस एक सपोर्ट लेवल पे है, यहाँ पे क्या मुझे फंडामेंटल्स में भी उस हिसाब का मूवमेंट दिख रहा है तो मैं इसको बाई कर सकूं। सो सीधा अपन चार्ट पे मूव करेंगे। इफ यू कैन, या आई हैव शेयर्ड द चार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा आप लॉगरिथमिक स्केल यूज कीजिएगा। आपको ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एक लॉग स्केल का। जैसे ये एक आपको नॉर्मल चार्ट मिलता है, ये आपका एक नॉर्मल चार्ट है। आप कभी भी नॉर्मल चार्ट यूज ना करके, बिकॉज वीकली और मंथली चार्ट में जो रहता है लॉगरिथमिक स्केल, आप एक सिंपल बोल सकते हैं कि परसेंटेज वाइज चार्ट है। कि जैसे श्री सीमेंट का भी एक समय पे प्राइस 100 रुपए था और उस समय पे अगर वो 100 रुपए बढ़ता था दैट वाज 100% फ्रॉम दैट प्राइस। 100 रुपए पे 100 रुपए बढ़ना दैट मीन्स 100% एप्रिसिएशन। और अभी जब श्री सीमेंट का प्राइस मोर देन 22,000 है, यहाँ से अगर वो 100 रुपीज बढ़ता है तो दैट इज 0.5% ऑफ करंट वैल्यू। तो ये आपको अगर नॉर्मल आप चार्ट देखोगे तो इसमें आपको सेम वैल्यू दिखाई देगा। यहाँ पे 100 रुपीज और यहाँ पे 100 रुपीज आपको सेम तरीके से दिखाई देगा। जबकि अगर आप अब जब लोग चार्ट में आप कन्वर्ट कर दोगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देगा कि जो 100 रुपए का मूवमेंट है that was 100% appreciation and अभी जो 100 रुपए चलेगा that is 0.5% appreciation। so simple percentage wise हमेशा चार्ट यूज कीजिएगा ताकि आप बेटर यूज कर सके ट्रेंड लाइंस का
और आप बेटर यूज कर सके एक एक्सट्रीम हाई और स्विंग लो पॉइंट्स का, जिससे कि आपको पता लगे कि कहाँ मेरा स्ट्रोक एक अच्छे खासे सपोर्ट लेवल्स पे है या फिर अच्छे खासे रेजिस्टेंस लेवल्स पे है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज यूज लोगरिथमिक स्केल ऑन एवरी टाइम फ्रेम। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं मारुति का, तो आपको नॉर्मल अगर आप चार्ट लेते थे, यहाँ से अगर आप देखेंगे मंथली चार्ट मारुति सुजुकी का, तो सिंपल जहां पे बिगिनिंग पॉइंट है वहां से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको एक सपोर्ट लेवल दिखेगा। जबकि आप ये अगर नॉर्मल चार्ट लेते थे, आपको ऐसा कोई ट्रेंड लाइन आप कहीं से भी बॉटम से ज्वाइन करके नहीं देख सकते थे। तो लॉग चार्ट यूज करने का सिंपल लॉजिक है कि आपको वीकली और मंथली चार्ट में बहुत ही सिंपल क्लासिकल जो पैटर्न्स रहते हैं उनसे आपको सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल का पता चलेगा। जैसे आपको काफी एग्जांपल्स मिलेंगे, एशियन पेंट्स का भी एग्जांपल मिलेगा, आपको काफी स्मॉल कैप स्टॉक्स का भी एग्जांपल मिलेगा। So first of all, always use logarithmic scale while checking weekly or monthly charts. Second, make a proper use of trend lines and divergences. So जब भी आपको कोई भी ट्रेंड लाइन मिलता है या फिर जब भी आपको कोई डाइवर्जेंस मिलता है उसका प्रॉपर यूज कीजिए। जैसे अपन कोई भी अगर एग्जांपल लेते हैं, तो सिंपल एग्जांपल है, नॉट एनी रिकमेंडेशन। सो इवन इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ लोरस, सो यू कैन चेक कि वीकली चार्ट में प्राइस ने काफी अपने को नीचे का मूव दिया, उसने काफी लोअर लो फॉर्मेशंस क्रिएट किए, जबकि आपको आरएसआई में दिखेगा एक हायर लो फॉर्मेशन। तो हमेशा जो भी आपके वीकली या फिर मंथली चार्ट रहते हैं उनमें आपको हमेशा डाइवर्जेंस का और ट्रेंड लाइंस का यूज करना है। यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन था जहाँ पे प्राइस ने बार बार सपोर्ट लिया और आरएसआई ने भी उसे सपोर्ट किया विद द बुलिश डाइवर्जेंस। तो आपको हमेशा लोगरिथमिक स्केल में जितना हो सके ट्रेंड लाइंस का और आरएसआई के साथ में डाइवर्जेंस का यूज करना चाहिए जितना आप कर सको, जिससे कि आपको टेक्निकल्स में रिजल्ट मिल सके। इवन अगर आप वीकली या मंथली चार्ट देखते हो, डाइवर्जेंस देखते हो, वहां से आपको काफी अच्छे गेन्स मिल सकते हैं इन 1 ईयर टाइम फ्रेम और इन 6 मंथ टाइम फ्रेम। तो आप इससे मीडियम टर्म और अपना लॉन्गर टर्म का इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो, जिससे आप ट्रेंड जल्दी पकड़ सकते हो। ट्रेंड आप बॉटम प्राइसेस के नजदीक पकड़ सकते हो विद द हेल्प ऑफ डाइवर्जेंस एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड लाइंस। फोर्थ पॉइंट, एक्सट्रीम हाई and low points are always important to identify great opportunities. Like if I check Newland Labs, on monthly charts, तो आप देखेंगे एक अच्छा खासा यश जी कहीं से तो डिस्टरबेंस है। हेलो, या बोलिए मोहित जी। okay, I think it's fine. मतलब everyone is muted. You can go ahead. We are able to hear you perfectly. okay, नहीं शायद आपसे डिस्टरबेंस है कुछ, तो थोड़ा सा ओके नाउ या अभी सही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्सट्रीम स्विंग हाई और एक्सट्रीम स्विंग लो पॉइंट्स का कैसे इंपॉर्टेंस रहता है। आप अगर देखते हैं एक्सट्रीम स्विंग हाई पॉइंट्स जो कि काफी एक यूफोरिया की कंडीशन में लगे हो या फिर काफी एक पेसिमिज्म की कंडीशन में लगे हो, यहाँ पे आप देखेंगे काफी यूफोरिया की कंडीशन में प्राइस ने नीचे से अराउंड 27 रुपीज से मूव दिया 291 रुपीज। तो ये आपके लिए एक स्विंग हाई पॉइंट है, एक्सट्रीम स्विंग हाई पॉइंट है, बिकॉज प्राइस ने अगले 10 साल भी इसको टेस्ट नहीं किया, उसके बाद में प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, देन आप देखेंगे प्राइस वापस इसको रीटेस्ट कर रहा है। ये जो टाइम था वो एक यूफोरिया कंडीशन था। ये जो टाइम था उस समय पे काफी पेसिमिज्म था स्टॉक के लिए, इवन इन शेयर मार्केट्स भी काफी पेसिमिज्म था। तो ये कंडीशंस आपको देखनी पड़ेगी कि जब यूफोरिया कंडीशन में हाई लगते हैं और जब एक पेसिमिज्म हो जाता है मार्केट में तब एक लो लगता है, वो दोनों क्या एक सिमिलर लेवल पे लगे हैं। अगर लगे हैं तो वहां से आपको गेन करने का बहुत अच्छा पॉसिबिलिटी होगा। even if you are buying at 300 और even if you are buying at 400 rupees 350 rupees, तो आपका रिस्क जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। even if you keep your stop loss at 245 rupees,
then also you can gain big, because जहाँ पे पहले एक यूफोरिया कंडीशन बना था, जहाँ पे एक यूफोरिया में हाई लगा था, अभी वहीं पे एक पेसिमिज्म में लो लग रहा है। तो ये आपका एक पॉइंट हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। और आप देखोगे 245 का जो लो लगा था, वहां से अराउंड प्राइस ने 5 टाइम्स आपको एप्रिसिएशन दिया है। बिकॉज ये कंडीशन अगर कोई भी स्टॉक फुलफिल कर देता है, दैट इज ए गोल्डन कॉम्बिनेशन फॉर यू, कि यूफोरिया कंडीशन में हाई, और जब मार्केट में पेसिमिज्म होता है तभी लो। इसको आप एक रिटेस्ट भी बोल सकते हो। और मैं इसको बोलूंगा कि यूफोरिया कंडीशन में हाई लगा था कुछ साल पहले, और उसके बाद में प्राइस ने, जब पेसिमिज्म था, तब प्राइस ने सेम लेवल पे, सेम रेंज पे एक लो हिट किया। तो हमेशा इन पॉइंट्स को आप आइडेंटिफाई कीजिए, ताकि आपको ग्रेट अपॉर्चुनिटीज मिले, ताकि आपको ऐसे न्यूलैंड जैसे स्टॉक्स मिले जो 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स और 5 टाइम्स तक के भी रिटर्न दे जाते हैं। इवन इफ यू ट्रेल योर स्टॉप लॉस, कभी भी प्राइस ने बहुत ज्यादा डाउन मूव नहीं दिया आफ्टर टचिंग दोज लेवल्स, उसने कभी उन लेवल्स को भी नहीं तोड़ा। तो हमेशा एक्सट्रीम स्विंग हाई, एक्सट्रीम स्विंग लो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। बहुत बेसिक कंसेप्ट है, बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं ये, अगर इनको सही तरीके से यूज किया जाए। बिकॉज हमेशा ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। तो नेक्स्ट, अब अगर हम देखें एक्सट्रीम हाई और लो पॉइंट्स के बाद में कंटिन्यूएशन ऑफ हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन, या आपको जो कंटिन्यूअस कंपाउंडर्स होते हैं, जो कंटिन्यूअस अपना बिजनेस ग्रो करते हैं, कंटिन्यूअसली अपना ऑपरेशनली बेटर नंबर्स पोस्ट करते हैं, उनमें आपको हमेशा ये कॉमन मिलेगा कि वो हमेशा जो लंबे टाइम फ्रेम के चार्ट रहते हैं, वीकली, मंथली, उनमें हमेशा वो हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन कंटिन्यू रखेंगे। इसमें आपको एग्जांपल काफी दिख सकते हैं जो भी लंबे टाइम में आपका वेल्थ क्रिएट करते हैं, लाइक एशियन पेंट्स, जो कि आपका ऐसा स्टॉक है जिसने पिछले 60 साल में अराउंड डबल डिजिट ग्रोथ दिया अपने प्रॉफिट्स, अपने रेवेन्यूज में। यहाँ पे आप देखेंगे उसने कंटिन्यूअस एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन, इवन इफ यू चेक वीकली चार्ट, उसने कंटिन्यूअस आपका एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन कंटिन्यू रखा है। तो ये कुछ चीजें जिसको आप यूज करके पता लगा सकते हो कि लॉग स्केल यूज कीजिए, प्रॉपर यूज कीजिए ट्रेंड लाइंस का, डाइवर्जेंस का विद आरएसआई, एक्सट्रीम हाई एक्सट्रीम लो पॉइंट्स, ये आप कहीं से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये आप बहुत सिंपल टू यूज है, आप एक्सट्रीम हाई एक्सट्रीम लो पॉइंट्स कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। मेन आपका स्टडी का है, आपका रिसर्च एंड एनालिसिस का है रोल जो है। एक्सट्रीम हाई और लो पॉइंट्स यूज कीजिए, और जब भी प्राइसेस इन्वेस्टर्स के लिए जब भी कंटिन्यूएशन होता है हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन का, वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपके बिजनेस के साथ साथ आपका प्राइस भी उस हिसाब से मूव कर रहा है। इफ द प्राइस इज नॉट मूविंग विद द बिजनेस, तो वहां पे कुछ दिक्कत हो सकती है। अगर प्राइस हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन को ब्रेक करता है, पिछले जो हायर लो है उसके नीचे जाता है, so there might be some trouble for you, because कई चीजें ऐसी होती है जो इन्वेस्टर्स तक आते आते देर लग जाती है, और बड़े लोगों को या फिर जिनको अपन जानते हैं ऑपरेटर्स, उनको बहुत पहले पता लग जाती है। तो कई बार आपको टेक्निकल्स में छोटा जो पार्ट है कि हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन का जो कंटिन्यूएशन है वो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा प्राइस में, वो हमेशा आपको चेक करना पड़ेगा ऑन वीकली एंड मंथली चार्ट। ये अपन ने 4 पॉइंट कंसिडर किए थे टेक्निकल्स में फॉर इन्वेस्टर्स, बहुत ही बेसिक आपके पॉइंट्स हैं, और आई होप ये आपको बहुत ही यूज आएंगे आगे आने वाले टाइम में। सो ये मेरी तरफ से आज छोटा सा प्रेजेंटेशन था। थोड़ा सा टाइम कम था तो हम थोड़ा कम कर पाए, अगली बार हो सकेगा तो ज्यादा भी करेंगे यश जी। नहीं, डेफिनेटली मोहित, विल आई थिंक आपका प्रेजेंटेशन खत्म हो गया, राइट? सो यू कैन स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन सो दैट वी कैन टॉक। Yeah, perfect. So great. Thank you so much, Mohit. I think it was a very useful, very knowledgeable presentation. काफी कुछ सीखने मिला. It was very short and crisp, and definitely we'll call you once again for another presentation for maybe another topic, because बहुत ज़्यादा मजा आया. It was a lot of learning for all the audience. जिस तरीके से आपने fundamental case study लिया and then you explained the technical parameters with examples. I think it was a really, really amazing way where we learned about
the Technofunda approach, I think, and you use it very thoroughly and very smartly, I would say, because जिस तरीके से अपने मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट भी बताया, so it was a great thing. I think our audience enjoyed a lot. So thank you so much for this, and thank you so much for explaining all the things in such a crisp way. So some closing words from you, and definitely then we'll take some closing questions, after which we'll end. First of all, thank you, ESG, because बहुत ही कम एक्सपीरियंस है मुझे सेशंस का, और बहुत ही कम टाइम में हमें मैनेज करना पड़ा ये सब कुछ, बिकॉज थोड़ा हेल्थ का भी इशू हो गया था. सो मतलब अगली बार बहुत अच्छे से अपन करेंगे, बेटर वे में इसको करने का कोशिश करेंगे. मुझे पता है इस समय काफी चीजें बहुत अच्छी तरीके से हुआ, इट वाज बेस्ट. अगली बार हम लोग को और अमेजिंग करना है, सो डोंट वरी अबाउट. राइट, वी शुड कीप इम्प्रूविंग, बिकॉज जैसे आपने शुरू में बोला खुद से compete कीजिए, तो compete करके ही अगली बार बेटर कर सकते हैं. Sure, definitely. So great, Mohit. Thank you so much. It was an amazing presentation. बहुत मजा आया. I think all the audience learned it, and all the audience enjoyed a lot and learned a lot. So if you have any questions, any doubts, you can just write in the chat box. We'll take 1 or 2 questions before we end the session. So there's a question whether we should wait for a breakout in fundamental sound stocks on charts. Should we wait for a breakout? Okay, in fundamentally sound stocks, you should never wait for any breakout. Just invest in SIP mode, invest 30% at current price, invest 30% whenever the price breakout on technical, while you are analyzing it technically. और जब जो आपका रिमेनिंग अमाउंट है, जो आपको 30% इन्वेस्ट करना है, वो आप पिरामिडिंग में इन्वेस्ट कीजिए. तो कभी भी फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स में रुकिए मत. आपका 30% जो भी आपका गोल है इन्वेस्ट करने का, उसका 30% करंट प्राइस पे इन्वेस्ट कीजिए हमेशा, बिकॉज जब तक स्टॉक टेक्निकली अच्छा होगा तब तक क्या पता आप 30-40% रिटर्न मिस कर चुके हो. तो फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स में नेवर वेट फॉर ब्रेकआउट. इंस्टेड ऑफ वेटिंग, जब ब्रेकआउट हो तब और ज्यादा ऐड कीजिए. Great. So I think it's already 10 o'clock. 10 से हम लोग पार कर चुके हैं, and we have taken a lot of questions already. Just I think last question we'll take. I think Facebook पे question है कि should we use both Technofunda approach in investing as well, or in investing should we use only fundamentals? In investing we should use 90% of the fundamentals. लाइक ज्यादातर अपन को बिजनेस को ही प्रायोरिटी देना है, बट टेक्निकल साइड में मैंने जैसे आपको एक बोला कि कई बार ऐसा होता है, कई कंपनीज में ऐसा होता है कि जब तक न्यूज अपने पास आती है, कोई भी छोटी से छोटी न्यूज जो कंपनी के लिए बहुत बड़ी हो, वो आते आते ऐसा प्राइस में मूवमेंट हो जाता है कि अपन फिर जब वो न्यूज आते तब एग्जिट नहीं कर पाते, जब कंपनी अपने को इन्फॉर्म करती तब एग्जिट नहीं कर पाते. दैट्स व्हाई मैंने बोला है कि 90% फंडामेंटल्स यूज करो, बट 10% छोटा सा एक क्वेश्चन दो कि टेक्निकल्स भी यूज कर सके, जिसमें हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बहुत ही बेसिक से बेसिक टेक्निकल यूज कर लो, बट आपका एक एग्जिट पॉइंट डिफाइन हो सके, इन वर्स्ट सिनारियो आप एग्जिट कर सको, इसलिए आपको थोड़ा सा टेक्निकल्स को भी देना पड़ेगा. बट या mostly आपको business track करना है while investing, no technical. Definitely. So great, Mohit. Again, if you have any questions, I think Mohit, you can drop your email ID, or maybe you can contact Mohit on Twitter. His Twitter ID is Big Bull Mohit, I think, right? So thank you so much once again, Mohit. It was an amazing 1-hour journey with you, where we learned a lot of things from technicals to fundamentals. And in fact, I enjoyed a lot, and all the audience, I think, enjoyed a lot. So once again, thank you so much. And thank you to all the audience who joined us on Sunday evening. I will apologize to some of the people who could not join on Zoom, because we had a full crowd of 100. So you can watch it on our Facebook, because it was live on our Facebook page. And soon this recording and this webinar will come on YouTube page also. So definitely you can watch it anytime, any times as you want. Okay, and thank you so much for the feedbacks and the amazing feedbacks which you're giving us on the chat box, and which are giving us as in terms of love which you provide us for all the sessions which we do. It gives us a lot of motivation and a lot of courage to bring speakers like Mohit on our platform every Sunday,
who share their knowledge, who share their wisdom with you. And thank you so much to all the audience who have joined us today. And I wish you stay safe, stay at home, take care of yourself, and have a great trading and investing week ahead. Keep soaring ahead. Keep try to work hard for your research, and keep competing with yourself, which is today's mantra. And I'll see you all next week with another great young speaker who will be sharing his journey. Maybe next week we have Diwali, so we have to postpone it 1 week, but we'll definitely share the details soon. And keep sharing your feedbacks because it motivates us to do well. Till then, I, Yash Tukar, sign off for today's session. And I wish you all a great trading as well investing week ahead. Bye bye. Take care. Good night.